Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. And the numbers where you can call us on are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. And our formal introduction. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम देश और विदेश से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताज़ा समाचार आप तक लाते हैं। श्रोताओं, आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज हम आपके फ़ोन कॉल्स भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक या व्यापारिक कोई भी मुद्दा हो, उस पर आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक से जुड़ी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आप हमसे इन फ़ोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ अमन अग्रवाल। अमन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Sonu. Yes, friends, let's begin with the headlines. Benchmark domestic indices continue upward trajectory for the fifth straight session. Sensex climbs over 850 points. Nifty reclaims 24,100. India's core sector growth rises 3.8% in March. And crude oil prices fall over 2%. Brent crude trades at $66.46 per barrel. प्रमुख घरेलू सूचकांक लगातार पांचवें सत्र तेजी में रहे। सेंसेक्स 850 अंकों से अधिक बढ़ गया। निफ्टी ने फिर से 24,100 के स्तर को पार कर लिया। भारत के मूलभूत ढांचे की वृद्धि दर मार्च में 3.8% हो गई और कच्चे तेल के मूल्यों में 2% से अधिक की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड $66.46 प्रति बैरल पर था। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगातार पांचवें सत्र बढ़त दर्ज करते हुए 1% से अधिक की वृद्धि पर बंद हुए। बैंकिंग, आईटी और तेल और गैस क्षेत्रों से जुड़े शेयरों की अगुवाई में बाजार में ये तेजी आई। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 1.09% की वृद्धि से 855 अंक बढ़कर 79,409 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.15% की तेजी से 274 अंक बढ़कर 24,126 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से और भी बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.2% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.6% से अधिक की तेजी दर्ज हुई। I'll look at the stocks in detail now. Well, the benchmark domestic equity indices today ended with gains of over 1%, continuing their upward trajectory for the fifth straight session, with banking, IT and oil and gas stocks leading the charge. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, rose 855 points or 1.09% to close at 79,409.
The National Stock Exchange Nifty 50 gained 274 points, 1.15% to settle at 24,126. The broader market indices at the BSE outperformed the frontline indices. The mid-cap index climbed 2.2% and the small-cap index added over 1.6%. In the Sensex index, 23 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Tech Mahindra rallied 4.9%, IndusInd Bank jumped over 4.2%, Power Grid gained over 3.6%. In the top laggards, Adani Ports lost more than 1.3%, Hindustan Unilever as well as ITC both slipped 1.04% each, and Asian Paints dropped almost 1%. In sectoral indices at the BSE, all sectors registered gains barring FMCG, which fell 0.75%. Among the top gainers, oil and gas rose 2.6%, power gained almost 2.5%, and focused IT added over 2.4%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,918 companies advanced, 1,168 declined, and shares of 161 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 93 companies hit their 52-week high, while 16 companies hit their 52-week low. We could discuss this in detail, but for the moment, we are now joined by Kumar Naik, calling us all the way from South, from Karnataka. Ji Kumar ji, yes, please ask a question. नमस्कार सबको. मैं कुमार नायक कर्नाटक के मैसूर से बोल रहा हूँ. नमस्कार. मतलब मेरा एक सिंस आई एम बेसिक लर्नर, तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन होगा सर. इक्विटी मार्केट और इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा मुझे विस्तार से बताएंगे तो मेरा जैसे बहुत बेसिक लर्नर्स को बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बिफोर इन्वेस्टिंग ऑल दिस थिंग्स इन म्यूचुअल फंड व्हाटएवर दिस, वी नीड टू हैव गुड इन्फॉर्मेशन. सो सर श्योर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, पूरा इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए सर. थैंक यू. देखिए जी, इक्विटी कंपनी के अंदर या किसी भी कंपनी में दो तरीके से पैसा रेज किया जा सकता है. एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट. डेट का मतलब है लोन लेके. दूसरा होता है इक्विटी मतलब जो ओनर्स होते हैं वो पैसा देते हैं उसके अंदर. तो जो वो अपना पैसा देते हैं उसके अगेंस्ट उसको इक्विटी दिया जाता है. अब वो इक्विटी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कुछ लोगों के हाथ में होती है. जब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है तो उसमें 50 लोगों से ज़्यादा होती है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वहाँ पब्लिक को दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है, तो वो शेयर होल्डिंग उनकी बन जाती है. तो आपको जितना पैसा निवेश करेंगे शेयर में उसे इक्विटी कहेंगे. फिर बाद में उस शेयर को, क्योंकि आप इक्विटी ओनर हैं उसके, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को आप कहेंगे कल को कि मैं ओनर नहीं बनना चाहता हूँ, तो उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ओपन मार्केट में जाके, जैसे शेयर मार्केट कहा जाता है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, वहाँ पे जाके उसको लिक्विडेट कर सकते हैं. कुछ लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद ही वो शेयर लिस्ट होना शुरू होता है, और लिस्ट होने के बाद आप वहाँ पे उसको बेच सकते हैं. कोई जो खरीदना आता है वो खरीद लेता है, उनके नाम में फिर वो ट्रांसफ़र हो जाती है ओनरशिप. इस ओनरशिप के लिए आपको डिविडेंड मिलता है, और अगर नहीं मिलेगा तो जो प्राइस रेज होती है कंपनी की बढ़ोतरी पे, उसको आप एनकैश कर सकते हैं. And Kumar Naik ji, if you want to increase your knowledge about the markets, certainly Market Mantra is the go-to program, because we come to you every day without fail at 6:30 sharp. So keep listening to us and increasing your knowledge. All right, let's. और अब मैसूरू से चलते हैं भोपाल की ओर, जहां से शंकर है हमारे अगले कॉलर. शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. सवाल पूछिए. Good evening, Market Mantra team. Good evening. Sir, why solar panel companies' shares have dwindled so much? Other companies have come back, but solars have not come back. And since oil prices are low, can't this money be used to make solar wafers in India? Because not too many wafer manufacturers are there. Most of these suppliers are basically fabricators and installers. तो वेफर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट क्यों काम नहीं कर पा रही? अभी तो सिचुएशन बहुत अच्छी है इंडिया के लिए, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज इन appreciate as competition to China. Thank you. I appreciate as far as share market is concerned, there has been a rise, and hopefully others will rise as well. Secondly, as far as creating a chip component which is concerned, it requires technology transfer. Most of the
things happen when there are collaborations which happen between foreign countries and India, and when technology transfer takes place. So far, we do not have the requisite technology and the know-how for actually building them up, although we have the bookish knowledge which is taught to most students across the country. But then it's not the question of bookish, but the real life situation. Hopefully in the future we will be able to develop these kind of structures as well, and we are buffering and creating markets which are actually supplying some of these goods to the rest of the world as well. There's also the concern of solar, where the solar panels which are getting installed are not really getting direct benefit to the consumer, because the electricity housings in this country are still not accommodating those benefits in the right manner. And that's one reason more which this industry is not growing, and we are seeing the fall in their revenues as well as in terms of the market performances. All right, that's a little tricky because we are banking so much on solar energy, Yes. considering that we have such a कहते हैं ना सूर्य देवता हम पर इतने मेहरबान हैं भारत में, तो we should be capitalizing more on this. Yeah, and till some time ago, I remember US used to pressurize us to buy solar cells from Yes. them. So Atmanirbhar Bharat में भी ये important होना चाहिए. Very critical. The government is focusing and has given large amount of impetus to it. A lot of government programs, state programs are there. But even now, the state electricity boards which are there, or the power distribution companies, are not able to directly transfer the benefit to the consumers who are actually installing the solar plants in their homes. And that's where the benefit, when people are not getting, they are not percolating it as a word of mouth, and people are that's why not encouraged to actually get this installed, despite policy frameworks at the national and state levels being there. Right. All right, we're now joined by N.R. Prasad, a very regular caller from Bengaluru. Yes, Prasad ji, please ask your question. Yeah. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Yes, please. Hello, Lalima ji. Hello, Sonu ji. Hello, ji. Mr. Agrawal, there are two questions. Sure, sir. One, Mr. J.D. Vance, Vice President, is already there in India, and likely focus on discussion with energy sector and the defense. Would these two sectors revive in the next 2.5 months? I'm looking at that till Q1. My second question is, IT revived a little, but not as expected by an investor like me. At least in the next 90 days, where this tariff war is paused, should we book the profit now or wait till first week of July and book our profit? No, Thank you. These are my two questions. Yes. Firstly, I think you can still wait on for booking your profit. Secondly, as far as Vance is concerned, it is not only for the purpose of solar and defense, which is their prime concern area, because that's what they sell. That's their main bread and butter for the United States, is to sell defense equipments. And that's where they would like the revenue to come in and for countries to buy. However, there would be, in my opinion, discussions on the trade issues, which have already been concerns. We have had Honorable Piyush Goyal ji to visit the United States, and the US Vice President is another move towards those discussions to bring in ease between India and United States. We are progressing in terms of trade and relationships, and I hope the visit will be treasured with his visit to Jaipur and Agra as well. आईटी सेक्टर का जो टर्न अराउंड हुआ है, जब टैरिफ्स डिक्लेयर हुए थे तो बहुत ज़्यादा उसमें हमने गिरावट देखी थी. अब हम देख रहे हैं कि सेकंड बेस्ट सेक्टर. आपको लगता है कि ये 90 डेज का जो समय मिला है वो आईटी सेक्टर के लिए अच्छा है, और डॉलर का जो एक कमज़ोरी है वो कैसे अफेक्ट करती है? नहीं, देखिए, पहली बात जो आईटी सेक्टर में जो कमज़ोरी देखने को मिली थी वो H1B वीज़ास की वजह से है, एंड इट इज़ नथिंग टू डू विद द ट्रेड वॉर इन स्पेसिफिक. H1B वीज़ास के ऊपर अभी भी होल्ड है, उस पर कोई अभी रिलैक्सेशन नहीं हुई है, और ट्रंप की प्रीवियस टर्म में क्लियर इंडिकेशन आ गया था कि दैट ही विल नॉट बी इंक्रीजिंग बिकॉज ही वांट्स अमेरिकन्स टू गेट जॉब्स, एंड दैट्स व्हाई ही इज डिस्करेजिंग more and more H1B visas to be given out. However, as far as workflow is concerned, because you have these companies having offices in India and overseas, so large amount of services get transferred, and we are seeing the rise of services primarily on account of the US-China discord which is happening recently because of the tariff war. So you will see a lot of business moving out of China and going into rest of the Asia, and India may be one of the constituent beneficiaries as a result of this specific trade war between US and China. Absolutely. और अब चलते हैं जयपुर, जहां से जितेंद्र हैं हमारे अगले कॉलर. जितेंद्र जी, सवाल पूछें. अच्छा, हाँ सर, जैसे अपनी जो भारतीय रेल है तो उसमें कई कंपनी है, तो एक दो कंपनी मिनी रत्न में आ गई है,
ठीक है, और रेलवे भी काफी प्रॉफिट में देता है, लेकिन रेलवे टिकट के पीछे लिखा है कि जैसे 57% ही ट्रेवल का कॉस्ट भारतीय रेल लेता है, तो इसका मतलब 43% तो मिलाता है। तो क्या इसको प्रॉफिट में फिर उसको माना जाएगा क्या, जब हम आपको एक तरह से डोनेशन ही दे रहे हैं, तो प्रॉफिट में तो कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी आपने। जितने भी ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवेज, एयरलाइंस, इस टाइप के जो मेगा प्रोजेक्ट, शिप्स वगैरह, पावर प्लांट्स, ये बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनका प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल जो होता है, उससे हम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो वो जो आपको रेट बता रहे हैं, वो वर्किंग कैपिटल का रेट बता रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोपोर्शन सब्सिडी के तौर पे सरकार देती है, तभी आपका रेट इतना सस्ता टिकट का हो पाता है। जो सब्सिडी सरकार ने थोड़ी कम करी है, और मेरे को याद है जब लालू प्रसाद यादव जी थे तो उन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट टिकट के पीछे शुरू करवाया था, जिसकी वजह से भी कुछ रेवेन्यू उनको, रेलवेज को आना शुरू हुआ था। तो ये कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जहां से कुछ सब्सिडी का कम किया जा सकता है, बट सब्सिडी अभी भी काफ़ी हद तक दी जा रही है, और वही बता रहा है पूरी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल कॉस्ट दोनों को देख के निकाली जाती है। वो इन प्रोजेक्ट्स में कभी कभी 100 साल लग जाते हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि आर्थिक सहायता दी जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब करेंसी बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 24 पैसे मजबूत होकर 85 रुपये 13 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। अमरीकी मुद्रा में भारी गिरावट और घरेलू बाजारों में आई तेजी के बल पर रुपये में ये मजबूती आई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98.24 पर था। इस पे भी हम ज़रूर बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सो डेफिनेटली उनको प्रेफरेंस देंगे। दिल्ली से रंजन कुमार लाल जी हैं, प्लीज़ अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते मार्केट मंत्र टीम, मैं रंजन कुमार लाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। नमस्कार। हाँ, ये एक चीज जानना था, जो क्रूड प्राइस का जो घटना और बढ़ना, ये एज सच अगर आम आदमी की बात की जाए तो वो किस तरह से अफेक्ट करता है आम आदमी को, क्रूड प्राइस का? धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। पहली बात तो जो घटना बटना है ये एक्सचेंजेस के ऊपर होता है, जो क्रूड एक्सचेंज, ऑयल्स के कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं उनके ऊपर प्राइसिंग का कोट किया जाता है। इस समय तो जो है वो घटा ही है, पर आपको समझना जरूरी है कि कोई भी देश, जैसे आप अपनी खरीदारी हर रोज़ की हर रोज़ नहीं करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों की, ऐसी कोई भी देश तेल की जो खरीदारी होती है करीबन 95 से 95 से 98% जो है वो एडवांस में बुक करके चलता है। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट 20-20, 25-25 साल के हुआ करते थे, अब पिछले 10-12 साल से वो 2.5-3 साल से लेके 5 साल के बीच में होते हैं। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है करीबन $60 से लेके $65 पर बैरल के बीच में हिंदुस्तान ने की हुई है। तो अगर ये बढ़ता है तो हम लोग जो 98% कंजम्पशन है वो नहीं खरीद रहे इस रेट पे, सिर्फ 2% जो कंजम्पशन हमारी एडिशनल हो रही है वो हम ओपन मार्केट से खरीदते हैं, जो एक्सचेंजेस से खरीदा जाता है, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। पर वो भी इंपैक्ट 3 से 4 महीने, बिकॉज जो तेल आज खरीदा जाएगा वो पहले हिंदुस्तान में डिलीवर होगा, फिर वो उसको क्रूड से नॉर्मल रिफाइन किया जाएगा, अलग अलग पार्ट में किया जाएगा, फिर आपकी टंकी में पहुंचते पहुंचते उसको 1.5 महीना 2 महीने लग जाता है। तो इसलिए उसका इंपैक्ट इमीडिएटली नहीं आता है। पर सरकार देखी गई है, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की सब सरकारें जब भी रेट ऐसा बढ़ता है तो रेट जरूर बढ़ा देते हैं, पर जब रेट घटता है तो वो रेट घटाती नहीं है। इस बार जब घटा था तो मंत्री साहब ने उसके ऊपर एक्साइज लगा के उस रेट के घटने के बेनिफिट को अपने पास ले लिया, पर कोशिश करें कि अगर और घटता है तो आप आम आदमी को इससे राहत जरूर दे, बिकॉज उससे इन्फ्लेशन ईजिंग होती है। बट अभी इस समय हमें इन्फ्लेशन ईजिंग भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा इन्फ्लेशन ऑलरेडी 3.34% है, जो बिलो बेंचमार्क इन्फ्लेशन है, विच इज़ नॉट गुड ऑल्सो, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो एक कारीगर जो बनाता है काम उसको अपने बेचने का, मेहनताना में मेहनत करने का, जोड़ने के लिए नहीं मिल पाता है। तो एक जैसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर एक मिनिमम होना चाहिए बॉडी में, ऐसे इन्फ्लेशन भी हिंदुस्तान के लिए करीबन 4.5% करीब होना जरूरी है। इस समय हम बिलो लेवल पे चल रहे हैं। That was a nice metaphor. Blood pressure, inflation. Very, very nice. All right, we are now joined by RP Verma from Gurgaon. वर्मा जी, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो इको आ जाएगा, और आ रहा है। हेलो जी 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 वर्मा जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता था कि इंडिया में तो ठीक है, ट्रेडिंग जो है शेयर मार्केट की कर रहे हैं, इक्विटी और इसकी जो है, लेकिन यदि फॉरेन में करना हो तो कैसे करेंगे? फॉरेन कंपनीज का जो है डॉलर्स में
आपने बड़ी अच्छी बात करी। पहली बात, हिंदुस्तान के अंदर जो एक्सचेंज है वो सिर्फ हिंदुस्तानी एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं है। दूसरी बात, जो अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जिस एक्सचेंज में करना चाहते हैं वहाँ के लीगल रिक्वायरमेंट्स पता करनी पड़ेंगी। वहाँ पे आपको एक लीगल नॉर्मली एंटिटी बनानी पड़ती है, या किसी शेयर ट्रेडिंग कंपनी जो वहाँ पे ट्रेड करती हैं उनके साथ आपको सेटअप करके लेना पड़ेगा अकाउंट, और उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकली अपने आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही पढ़िए, बिकॉज उसमें लाइबिलिटी जो होती है, टैक्स लाइबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये बाहर की कंपनीज में, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज होता है हिंदुस्तान में, तो बाहर की कंपनीज यहाँ पे लिस्ट कर रही होती, तो आप उनमें डायरेक्टली ट्रेड कर सकते थे, पर अभी नहीं है। दिल्ली से दिनेश है हमारे अगले कॉलर। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से। हाँ जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले एक स्टेटमेंट का है कि जैसे शेयर प्राइस होती है वो कंपनी की वर्थ को प्रॉपरली या एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं करती है। उसका प्राइस जो होता है शेयर का, वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी हम डिमांड एंड सप्लाई और बास्केट ऑफ करेंसीज के बेसिस पे निकालते हैं। तो आपका ओपिनियन में क्या ये ऑब्जेक्टिव तरीका है, या फिर अगर हम एनवायरनमेंट को देखते हुए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा एडमिनिस्ट्रेटिवली फिक्स कर दें प्राइस, तो वो ज्यादा रैशनल और एप्रोप्रिएट होगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1978 से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस ही किया जाता था। तब से हमने एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विद अ मार्जिन हमने किया है, और उसी स्ट्रक्चर में हम करते हैं। ज़्यादातर देश में ऐसे ही फ्लोटिंग होता है। जहाँ तक आपने रेट की बात की, बिल्कुल ठीक है। बास्केट ऑफ करेंसीज होती है। जैसे आप मंडी में सामान खरीदने जाते हैं तो एक वो रेट जब निर्धारित करते हैं, वो अलग अलग सोर्सेज से जब ले रहे हैं सामान, उनका जो रेट होता है उसका एवरेज वो मंडी वाले फिर रेट अनाउंस करते हैं। इसी तरीके से इस करेंसी का भी रेट अलग अलग करेंसीज को बास्केट में डाल के किया जाता है। शेयर मार्केट में भी जो शेयर प्राइसेज हैं वो सप्लाई एंड डिमांड से होती हैं। वो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको रिफ्लेक्ट तो करती हैं, उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब तो करती हैं, बट वो डिपेंडेंट होती हैं आम आदमी के खरीदने और बेचने पे। तो उसकी प्राइस में कोई गलती नहीं है, पर जहाँ पे आपने दोनों को लिंक किया वो अलग चीज है। जैसे रुपए की जो वैल्यू है, रुपए की जो वैल्यू आती है वो एक एसेट से आती है जो होता है जो पब्लिकली और प्राइवेटली हेल्ड हो। आपको सरप्राइजिंग होगा, मतलब आपका भी जो एसेट है और जो भारत सरकार का एसेट है, वो सारे एसेट की वैल्यू जो है रुपए की स्ट्रेंथ को बनाता है। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले ग्रीस में प्रॉब्लम हुई थी और वहां पे वो करेंसी नहीं प्रोड्यूस कर सकते बिकॉज वो यूरो जोन के अंदर आते हैं, यूरो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, तो उनके पास प्रिंट करने का तरीका नहीं था, तो वहां पे उनको नेशनल एसेट्स को बेचना पड़ रहा था। अगर नेशनल एसेट्स सब बिक जाते और फिर भी करेंसी स्टेबल नहीं होती और प्रॉब्लम उनकी देश में रहती, तो उनको प्राइवेट एसेट्स को भी बेचना पड़ता। तो सरकार के पास माध्यम होता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, क्योंकि जो करेंसी है वो हमारे आपके मेरे प्राइवेटली पब्लिकली हेल्ड सब एसेट्स के बेसिस पे होती है। तो इसलिए वो वैल्यू और जो करेंसी की इस समय वैल्यू, दोनों में बहुत अंतराल्य है। जिस तरीके से इक्विटी शेयर और जो मार्केट में इक्विटी ट्रेड हो रही है उसमें अंतर है। All right, let's go to Bihar, Begusarai in particular, and Tinku Rai is there with us online. जी टिंकू जी, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो। जी पूछिए। नमस्कार राय साहब, बताएं। नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए। सर हम पूछ रहे थे गोल्ड के बारे में। हाँ जी सर। ये गोल्ड पे रुपया लगाना अच्छा है या गलत है, इस पे जानकारी। और ये आम आदमी जो गोल्ड इतना महंगाई हो रहा है, तो सर ये परचेज कैसे करेगा आम आदमी गोल्ड? देखिए अच्छा सवाल है, इतना देखिए ये तो आपको देखने की बात है कि आपकी गृहिणी को गोल्ड की जरूरत है या नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोल्ड की खपत होती है विश्व के अंदर। 2/3 जो गोल्ड की प्रोडक्शन है वो हिंदुस्तान ऑफिशियली खरीदता है। 1/3 में से भी जो है करीबन 60% जो है स्मगल होकर हिंदुस्तान में आता है। तो हम सोच सकते हैं आज भी हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया की तरह हम खाते हैं गोल्ड को और पीते हैं, और ये ज्यादातर आम आदमी करता है, कोई रिच और बहुत इन्फ्लुएंशियल या सरकारें नहीं करती हैं। तो इसलिए ये देखना कि आपको खरीदना नहीं खरीदना, तो अपनी घर की अर्थव्यवस्था को देखें, अपनी गृहिणी के इच्छाओं को देखें और उसको खुश रखने के लिए और घर को खुश रखने के लिए और सिक्योरिटी के पर्पज से खरीदें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हैं तो इस समय बहुत तेजी पे है सोना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेजी पे नहीं है, क्योंकि रुपया अभी गिरा था $82-81 से रुपये पर डॉलर पे लेके 88 पे पहुंच गया था। इसलिए हिंदुस्तान में गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा तीव्रता से ऊपर चली गई थी, जो थोड़ी स्टेबलाइज होने की उम्मीद है। और उसके बाद अगर आप खरीदेंगे तो ठीक रहेगा, पर एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम उतना ही रखना चाहिए गोल्ड में जितना वो सिक्योरिटी को बेनिफिट कर सके। और अब दिल्ली से रंजीत है हमारे अगले कॉलर, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
नमस्कार मार्केट मंत्रा जी। मेरा सवाल ये है, जो डिजिटल कॉइन्स होते हैं क्या वो इंडिया में लीगल है और एज आम आदमी? हाँ बिल्कुल ऐसा है जी। जो डिजिटल या क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो प्रोडक्ट्स होते हैं लीगली उनको रखना या प्रोसेस करना, दे आर नॉट लीगल टेंडर्स, बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के दौरान उसके ऊपर ट्रेडिंग करना अलाउ कर दिया गया था। तो इसलिए ट्रेडिंग अगर आप एक्सचेंज पे कर रहे हैं तो वो इस समय अलाउड है, पर लीगल टेंडर जो है वो लीगल टेंडर की तरह उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर आप उनको करते हैं किसी वजह से तो उनके ऊपर TDS भी देना होता है, जो निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कहा था। और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। 5 प्रमुख एशियाई बाजारों में से 3 आज बढ़त के साथ बंद हुए। सिंगापुर स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1% से अधिक बढ़ गया। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.4% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% की बढ़त में रहा। लेकिन जापान का निक्केई सूचकांक 1.3% की भारी गिरावट पर बंद हुआ। इस बीच हांगकांग और यूरोपीय बाजार ईस्टर मंडे के उपलक्ष्य में बंद रहे। इससे पहले आज चीन ने लगातार छठे महीने अपनी प्रमुख ऋण दर को ज्यों का त्यों बनाए रखने का फैसला लिया। अमेरिका के साथ व्यापार तनावों के बीच चीन के केंद्रीय बैंक का पूरा ध्यान युआन को स्थिर करने पर है। And India's infrastructure output, which constitutes about 2/5 of the country's industrial production, increased by 3.8% in March this year on an annual basis. The production of cement, fertilizers, steel, electricity, coal and refinery products recorded positive growth during last month. Meanwhile, the cumulative growth rate of a combined index of 8 core industries, ICI, during financial year 2025 stood at 4.4% as compared to the corresponding period last year. The 8 core industries comprise 40.27% of the weight of items included in the index of industrial production. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस वर्ष फरवरी माह के दौरान कुल 16,10,000 सदस्यों की वृद्धि दर्ज की है। यह फरवरी 2024 की तुलना में लगभग 4% की वृद्धि को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस वृद्धि का श्रेय बढ़ते रोजगार के अवसरों, कर्मचारी लाभों के प्रति बढ़ती जागरूकता और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रभावी जनसंपर्क पहलों को दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डेटा के अनुसार फरवरी 2025 में लगभग 7,39,000 नए सदस्य जोड़े गए। And, the US Vice President J.D. Vance today arrived in New Delhi on a 4-day visit to India. He is accompanied by Second Lady of the US, Usha Vance, and senior members of the US administration. This is Vice President Vance's first visit to India. He will meet Prime Minister Narendra Modi later in the evening, and the Vice President is also scheduled to visit Jaipur and Agra. During his 3-day stay in Jaipur, the US Vice President will visit various historical sites with his family. He will also address a business summit on the future of India-US trade relations. Aman, can we take a quick peep into what is he here for and what kind of negotiations will he have with the leaders here? No, I think he is here to enhance the trade. There is a ripple which is happening because of the US trade tariff problems which are happening, and I think he's there to ease, like our Minister Piyush Goyal was there recently to US. और अब चले commodities की ओर। Crude oil, oil prices fell more than 2% today amid signs of progress in talks between the US and Iran, while investors remained concerned about economic headwinds from tariffs. Brent crude was trading over 2.2% down at $66.46 per barrel. WTI crude was trading 2.3% down at $63.19 per barrel when reports last came in. उधर सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 1.98% बढ़कर 97,330 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1.46% बढ़कर 96,820 रुपए प्रति किलो पर थी। पंकज दिल्ली से हमारे हैं कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन समय शायद हमें अभी इजाज़त नहीं दे रहा। पंकज, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अगले सैटरडे फ़ोन कर सकते हैं और जो भी आप पूछना चाहें हमारे एक्सपर्ट होंगे यहाँ पर, आप पूछ सकते हैं।
And one more little story, small story. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to arrive in Jeddah tomorrow, marking the first visit by an Indian leader to Saudi Arabia's commercial hub in over 4 decades. बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमन जी, शामिल होने के लिए, जानकारी देने के लिए और सभी श्रोताओं का भी इतने उत्साह के साथ भाग लेने के लिए. And now the headlines. Benchmark domestic indices continue upward trajectory for the 5th straight session. Sensex climbs over 850 points. Nifty reclaims 24,100. India's core sector growth rises 3.8% in March, and crude oil prices fall over 2%. Brent crude trades at $66.46 per barrel. On that note, it's time for us to bid adieu. This is myself, Lalima Aneja Dang, my co-anchor Sonu Sood, and our expert Aman Agarwal to sign off. Namaskar. Market Mantra.